Hello students, once again welcome back to your English class for lesson 2.4 Three Visions for India by Dr. APJ Abdul Kalam. Indian culture has been full of great personalities. One of them is Dr. APJ Abdul Kalam. He is also known as the Missile Man of India because of his greatest contribution to Indian missile development research. Plus, he has been the 11th President of India and served the country politically. During his scientific and legislative career, Abdul Kalam served the country tirelessly for the upliftment of Indian technology. He took India to the heights of the sky. Students, we have already learned about the contribution of Dr. APJ Abdul Kalam or the Missile Man of India. And even I told you earlier that this lesson was based on the speech which was delivered by him to the college students so that he can give a vision to them. So initially we have learned that Dr. APJ Abdul Kalam has three visions for India: freedom, development and standing up. And he is telling that we are having the fullest potential capacity to prove ourselves. And he has given us the message that if we are not free, no one will respect us. For that, he is the one who inspires us that we are the peoples of India and we are the one who experienced so many years of slavery under various rules, but we have not made anyone slaves. That means we respect others' freedom. This is what a very great quality. He just wanted that all the Indians should be self-reliant, self-assured, and we will not depend on any other one, any nation for anything. So now let's continue. Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today, yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation. Self-reliant and self-assured, isn't it right? We have completed our first part of video till here that he just try to realize us. वो हमें एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि इवन हमने क्या किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आउटकम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है हमने सॉल्व किया है. And now if you will see, so even in our nation we just reduce our poverty level also. Our poverty level is also falling and हमारे जो अचीवमेंट्स है उससे जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. अलग अलग जो फील्ड्स होती है हमने अपने आप को प्रूव किया है दैट वी आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू सो. एंड बस एक ही चीज़ जो है हमारे अंदर कम है, दैट इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ़ वी नर्चर द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अस, अगर हमने एक बार अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना लिया सो दैट वी कैन प्रूव आवर क्लेम्स. सो ही वॉन्टेड दैट फिर इंडिया को जो है वो डेवलप नेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज वी आर सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, राइट. इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. दैट मीन्स वी आर हैविंग द कैपेबिलिटी, वी आर प्रूविंग आवर क्लेम्स बाय वेरियस अचीवमेंट्स, बट स्टिल वी आर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ रिलायंस नहीं है हमारे अंदर, सेल्फ एश्योरेंस नहीं है. और कॉन्फिडेंस के लैक की वजह से क्या होता है कि हम वर्ल्ड के सामने जो है खड़े नहीं हो पाते. दैट वी आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी, हम उनको शोल्डर्ड नहीं कर पाते हैं. सो हियर ही वॉन्टेड टू से दैट आई हैव द थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. Now he further says that कि मेरा तीसरा विजन क्या है कि हम स्टैंड अप हो. फॉर वॉट? पूरे वर्ल्ड के सामने. कैसे? कि हमारी क्या हो, रिस्पेक्ट हो. रिस्पेक्ट इन द सेंस यू नो दैट दोज हु आर हैविंग मिलिट्री पावर, दोज हु आर हैविंग मिलिट्री माइट और स्ट्रेंथ, दे आर बीइंग गिवन द रिस्पेक्टेबल पोजिशन. सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनको ऑनर देते हैं, राइट. सो हियर ही सेज दैट
दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। एक्चुअली ये क्या है, वक्त की ज़रूरत है कि हम क्या करें, अपने मिलिट्री पावर को, अपने इकोनॉमिक पावर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। इफ़ यू प्रूव अवर सेल्फ अ स्ट्रेंथन नेशन, देन एवरी वन विल रिस्पेक्ट अस। So for that we need to make the changes in our economic system, even we need to make improvement in our military might, so that if we will make all these things strongest one, so that we can go hand in hand with the world. No one will disrespect us. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? Here he asks the questions to the common people, to all of us, that इंडिया जो है वो अपने आप को अपनी पहचान बताने से, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने से जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने से जो है वो क्यों इनकार करता है? दैट मीन्स वाई वी आर नॉट एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग आवर अचीवमेंट्स, आवर स्ट्रेंथ, आवर विल पावर। हम ये सारी चीज़ों को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? बिकॉज वी आर सच अ ग्रेट नेशन। हम बहुत बड़े हमारे अचीवमेंट्स हैं। हमारे जो हिस्ट्री जो है वो, हमारा जो हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा जो हेरिटेज है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ अचीवमेंट्स। वी हैव सो मैनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, or we can say that from ancient time till now, we are having various persons, various personalities who did so much, so many, we can say that outstanding work in different fields, so that वर्ल्ड जो है पूरा वो भी देखता रह गया था कि इंडिया के अचीवमेंट्स इतने सारे हैं, इतनी सारी फील्ड में, नॉट ओनली बाय मेल बट ऑल्सो बाय फीमेल्स ऑल्सो. सो देन ऑल्सो वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम. वाई? क्यों ऐसा है कि हम उसे एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वीट ग्रो करने वाली सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया. वी नो दैट पंजाब इज़ नोन एज द वीट हाउस. पंजाब को वीट हाउस भी कहा जाता है. सबसे ज़्यादा वीट जो है वहाँ पर से प्रोड्यूस्ड होता है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. इवन राइस का कल्टिवेशन भी सबसे ज़्यादा क्या है? सेकेंड पोजीशन पर. पूरे वर्ल्ड में जो है सेकेंड पोजीशन हमारी है. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन. डेयरी फार्म सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंडिया फेमस है, ऑन द वेरी टॉप मोस्ट पोजिशन. वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. सैटेलाइट जो स्पेस में सेंड किए जाते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उसमें जो है वो इंडिया क्या है? नंबर 1 पर है. लुक एट डॉक्टर सुदर्शन. ही हैज़ ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट. डॉक्टर सुदर्शन को अगर हम देखेंगे, सो वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ हिम दैट उन्होंने क्या किया? एक ट्राइबल विलेज को, ट्राइबल्स दैट मीन्स दोज हु आर द नोमैडिक पीपल्स, आदिवासी जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तो उन्होंने वो ट्राइबल विलेज को कन्वर्ट किया और उन्होंने जो है उन्होंने एक सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बनाया. दैट मीन्स एक अच्छा विलेज जो है उन्होंने फॉर्म करके दिया जो खुद जो है वो सारी अपनी नीड को फुलफिल करता है. दोज हु आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर वन फॉर देयर नीड्स, दे आर सेल्फ डेवलप्ड पीपल्स. तो ये उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया डॉक्टर सुदर्शन, दिस इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट्स. देर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, बट आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड विथ बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिज़ास्टर्स. ऐसे हमारे पास मिलियंस क्या हैं? अचीवमेंट्स हैं. हम हर सिटी, हर शहर, हर विलेज से जो है हमको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, जिसकी वजह से सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो सोसाइटी में चेंजेस लाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बट देन टू आवर न्यूज़पेपर्स, आवर मीडिया, इफ़ यू विल सी, सो डेली हम क्या सुनते हैं कि डेली जो है हम बैड न्यूज़, फेलियर्स, डिज़ास्टर्स, ये सारी न्यूज़ देखते हैं. कहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए, कहाँ पर जो किसी ने किसी को लूट लिया, कहाँ पर मर्डर हुए, थेफ्ट हुए, कौन सा डिज़ास्टर कहाँ पर आया, कौन सा विलेज जो है यहाँ पर फ्लड आया, एंड मैनी मोर थिंग्स. दैट मीन्स आवर न्यूज़, आवर मीडिया इज़ कम्प्लीट इज़ full of actually all these bad news, failures and disasters. So why this is so? ऐसा क्यों है कि हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ बैड न्यूज़ को हाईलाइट करता है? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस? अब यहाँ पर वो हमसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हमको एक विजन भी दे रहे हैं कि हमें क्या रियलाइज़ नहीं होता कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कैसे आती है? सेल्फ रिलायंस से. दैट मीन्स हम जो है डिपेंडेंसी छोड़ दें, अगर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें और सब जो है खुद हम अपने ओन से फुलफिल करें अपनी हर नीड को.
हम किसी से हेल्प ना लें, so that only we will be self-reliance, and if we will self-reliance, that automatically we will achieve self-respect. Here he experiences his own experience. Here he shares his own experience with us that I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. ये अपना एक जो है वो लाइव उनका एक अपना खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो टेल अवीव में थे और वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इजरायली न्यूज़पेपर. सो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बॉम्बार्डमेंट्स और अटैक्स हुए थे, मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक्स हुए थे एंड बहुत डेथ्स हुई थी. थाउजेंड्स एंड हम कहते हैं ना, बहुत हज़ारों लाखों लोग जो आपने देखा होगा कि अगर अटैक्स या बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, सो मैनी पीपल डाइड इन दैट, और बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. बट एंड एट द टाइम द हमास हैड स्ट्रक, पूरी तरह से हमास जो है वो क्या हो गया था, स्ट्रक हो गया था. हमास इज़ द नेम ऑफ प्लेस इन इसराइल. बट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ अ जेविश जेंटलमैन हु इन 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and greenery. See, वहाँ के जो नॉर्मल जो एक्चुअल सिचुएशन जो चल रही है एट प्रेजेंट, दैट वाज कंटिन्यूसली ऑफ अ डेथ्स, है ना, कि वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं और पूरा जो डिज़ास्टर फैला हुआ है, ओवरऑल ब्लड शेड है. ये एक्चुअली उनकी प्रेजेंट सिचुएशन थी. बट उनका जो न्यूज़पेपर है, इसराइली न्यूज़पेपर, उसका फर्स्ट पेज जो है उस पर उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, दैट जस्ट प्रेजेंटेड द अचीवमेंट ऑफ अ पर्सन, जेविश जेंटलमैन. जेविश जीव पीपल जो होते हैं, जिसे हम लोग यहूदी कहते हैं नॉर्मली, जेविश पीपल. तो एक जेविश जेंटलमैन की यहाँ पर ये एक पिक्चर थी एंड उसका अचीवमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर, दैट when he was only 5 years old, so he had just transformed a land into a orchid. डेजर्ट लैंड जो थी, पूरी डेजर्टेड लैंड को उसने क्या किया था, एक ऑर्किड में जो है पूरा बाग होते हैं ग्रीनरी वाले, उन्होंने क्या किया था, उसको उसमें कन्वर्ट किया था, पूरा उसमें ट्रांसफॉर्म किया था. तो एक डेजर्टेड लैंड एरिया को एक ऑर्किड में कन्वर्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. और उस टाइम मतलब ये न्यूज़ जो है वो उस टाइम उन्होंने प्रेजेंट की जब ऑलरेडी इसराइल पूरी तरह से क्या हो गया था, पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट. यानी इतना ज़्यादा डिज़ास्टर, इतना ज़्यादा ब्लडशीड है वहाँ पर. सो फ्रंट पेज की न्यूज़ क्या होना चाहिए थी, बॉम्बार्डमेंट इन इसराइल, थाउजेंड्स किल, ऐसा कुछ ऐसी न्यूज़ होती है ना. बट देयर व्हाट दे प्रेजेंट, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, उन्होंने अचीवमेंट को प्रेजेंट किया. एंड द गोरी डिटेल्स ऑफ द किलिंग, बॉम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स वर इनसाइड द न्यूज़पेपर बरीड अमंग अदर न्यूज़. इजंट इट पॉसिबल इन अवर कंट्री. तो आगे वो और फर्दर क्या कह रहे हैं कि बाकी जो दूसरी डिटेल्स थी, यानी एक्चुअल जो उस प्रेजेंट सिचुएशन की डिटेल्स थी, दैट मीन्स ऑफ किलिंग्स, ऑफ बॉम्बार्डमेंट्स और डेथ्स, ये सब उन्होंने न्यूज़पेपर में कहाँ प्रेजेंट की थी, अंदर की साइड थी. न्यूज़पेपर के इनसाइड उन्होंने ये सारी न्यूज़ रखी थी, वो भी बहुत सारे न्यूज़ के बीच में. ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में पूरा सिर्फ यही हाईलाइट किया है कि वहाँ पर किलिंग्स हो रही है, बॉम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं एंड डेथ्स हो रही है. ये उन्होंने पूरे न्यूज़पेपर में हाईलाइट नहीं किया था. उन्होंने बहुत सारी ग्लोरीज़ को, बहुत सारे अचीवमेंट्स के और बहुत सारी दूसरी न्यूज़ के बीच में जो है उन्होंने वो सारे न्यूज़ को भी प्रेजेंट किया था, ऐसे कि वो नेगेटिवली जो है वो पूरा हमारा सिर्फ माइंड जो है वो ऐसी बैड न्यूज़ पर ही ना जाए, बल्कि हम उनके अचीवमेंट को देखकर अप्रिशिएट भी करें. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन अवर नेशन. सो हियर ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू अस दैट इजंट इट पॉसिबल इन अवर कंट्री. गौरी जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग ब्लडशेड एंड वायलेंस. दैट मीन्स वो सारे न्यूज़ जिसमें सारा वायलेंस, ब्लडशेड था, उन्होंने वो न्यूज़ कहाँ रखी थी, इनसाइड द न्यूज़पेपर, कवर्ड विथ सम अदर न्यूज़ ऑल्सो, जो दूसरी और बहुत सारी न्यूज़ के बीच में थी. सो ऐसा हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होता है कि हमारी कंट्री की मीडिया जो है वो इस तरह से काम क्यों नहीं करती. हमारे यहाँ पर कुछ भी छोटा सा भी कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसे फ्रंट पेज पर जो है वो एकदम मेन न्यूज़ बनाकर हाईलाइट किया जाता है. वाई दिस इज़ सो. तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली नीड टू चेंज. ये क्या है, चेंज करने की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. अब वो क्या कहते हैं कि उन्हें क्या करना है, डेवलप्ड इंडिया में रहना है. सो हियर ऑल्सो यहाँ पर भी उन्होंने जो है एक अपना लाइफ जो है वो एक वो शेयर किया है, एक्सपीरियंस शेयर किया है. अनदर क्वेश्चन, वाई आर वी एज ए नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. अब वो हमसे सबसे क्वेश्चन कर रहे हैं टू ऑल द इंडियंस कि वी आर लिविंग इन द नेशन which is actually an agrarian nation, which is almost self-reliant nation.
बट देन टू वी आर ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. आपने देखा होगा ब्रांड्स जो होते हैं फॉरेन ब्रांड्स का लोगों को बहुत क्रेज़ होता है, right? We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technologies. Why this obsession will with everything imported? तो हमारे अंदर ये ऑब्सेशन क्यों, ये जुनून क्यों है कि हमें सारी चीज़ इम्पोर्टेड चाहिए, हमारे नेशन की चीज़ें क्यों नहीं चाहिए हमको? अगर वो इम्पोर्टेड थिंग्स है तो हम क्या है, हम शो ऑफ करते दैट इट इज़ फ्रॉम लंदन, दिस इज़ फ्रॉम यूरोप, दिस इज़ फ्रॉम रशिया. तो हमारे अंदर ये होता है कि हम चीज़ों को जो है वो मतलब अब ऐसा हो गया है कि इंडिया में कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेड है दैट मीन्स वो हमारे हाई एलिट क्लास को क्या करती है, नॉमिनेट करती है, उनको जो है वो डिस्क्राइब करती है. बट इफ़ यू आर यूजिंग द इंडियन गुड्स, सो दिस इज़ व्हाट द मिडल पीपल्स, जो मिडल वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, दोज आर द पीपल हु आर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटीज़ टू परचेज द imported goods from foreign areas, from foreign countries. So they are just purchasing these Indian goods. So ये हमारे अंदर ऑब्सेशन क्यों है? अगर इंडियन गुड्स है तो वो उसकी मतलब उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? उल्टा हमें जो क्या होना चाहिए, वी मस्ट फील प्राउड दैट वी आर एज इंडियंस, वी आर यूजिंग द इंडियन मेड गुड्स. बट हियर इन आवर केस इट इज़ जस्ट अपोजिट. इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड थिंग्स दैट मीन्स फॉरेन टीवी है, फॉरेन टी शर्ट्स हैं, फॉरेन हमारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम बहुत प्राउडली लोगों को शो करते हैं दैट दिस इज़ दिस वन सो थिंग आई हैव परचेज फ्रॉम दिस वन सो ब्रांड, दैट इज़ व्हाट फॉरेन ब्रांड, मुझे मैंने बाहर से परचेज करके लाया, मुझे किसी फॉरेन कंट्री से किसी ने मुझे गिफ्ट किया. तो हम बहुत उसको एकदम प्राउडली और एकदम उससे जो है वो शो करते लोगों को. वाई दिस इज़ सो? हमारे अंदर ऐसा क्यों है? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? क्या हमें पता नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सेल्फ रिलायंस से आती है, कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है, किसी दूसरी चीज़ों के लिए जो है हम प्राउड फील नहीं करना चाहिए. वी मस्ट फील प्राउड टू अवर नेशन, टू अवर गुड्स. आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर when a 14-year-old girl asked me फॉर माई ऑटोग्राफ. यहाँ पर वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं जब हैदराबाद में था तो मैं वहाँ पर ऐसे ही एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था, तो मुझे एक 14 साल की बच्ची ने जो क्या पूछा, मुझसे मेरा ऑटोग्राफ लिया. आई आस्क्ड हर व्हाट अ गोल इन लाइफ इज़. तो मैंने उससे पूछा कि आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या गोल है आपका, व्हाट एक्चुअली यू वांटेड टू बी इन योर फ्यूचर. शी रिप्लाइड, क्या आंसर दिया उस बच्ची ने, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. सी क्या आंसर दिया उसने कि मुझे एक ऐसे इंडिया में रहना है जो डेवलपिंग नहीं रहे, जो डेवलप्ड रहे, जो इम्पोर्टेड गुड्स पर जो प्राउड फील नहीं करे बल्कि जो सेल्फ रिलायंट हो. हियर एक्चुअली ही वांटेड टू रियलाइज दैट वी आर सो रिच इन ईच एंड एवरीथिंग. वी आर हैविंग कैपेबिलिटीज़, वी आर हैविंग टेक्नोलॉजीज़, वी आर हैविंग गुड माइंड्स. एक्चुअली वी आर बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग. वी आर एंडोव्ड विथ सो मच नेचुरल थिंग्स. नेचर ने भी हमको इतना ज़्यादा जो है वो ब्लेस किया है, इतना अच्छा जो है हमारा. अगर इंडिया की अगर हम पूरी वो देखते हैं जोग्राफिकल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम चेक करते हैं, सो दैट वी रियलाइज दैट हमारा जो है वो पूरा लैंड एरिया, हमको जो पूरा कोस्टल एरिया मिला है, साइड में जो सी एरिया मिला है, लैंड एरिया मिला है, जो वेजिटेशंस है, एनिमल्स, फ्लोरा, फाउना, ईच एंड एवरीथिंग, वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड. सो एंड वी आर हैविंग सो मच ब्रिलियंट माइंड इन अवर नेशन. हम हमारी टेक्नोलॉजीज़ का, हम हमारे मैन पावर का यूज़ जो है वो दूसरे नेशंस को सर्व करने में कर रहे हैं. मोस्टली आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करने वाले या बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के, वो दूसरी कंट्रीज़ के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जाकर काम करते हैं और वो उनको सर्व करते हैं. सो वाई वी आर नॉट गिविंग सर्विस टू अवर नेशन इफ़ वी आर हैविंग द कैपेबिलिटीज़, इफ़ वी आर हैविंग सो मच ऑफ talent? So why we are not utilizing it in our own nation to make our nation develop from developing to a developed nation? So here he is just conveying us a message that for her, that means for that 14 years old girl who asked for us that or who has just give a one wish to us that she wanted to live in a developed nation. So for her
you and I have to build this developed India, you must proclaim. तो हमें उसके लिए और हम सब के लिए क्या करना है, अपने नेशन को डेवलप्ड इंडिया बनाना है, नॉट इन द फेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपिंग ऑलवेज वी आर इन द मोड ऑफ डेवलपिंग ओनली. कब तक चलेगा? जब तक का हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं बनाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक जो है हम क्या कर, अपना ये जो ड्रीम है अपने आप को डेवलप्ड नेशन बनाने का हम अचीव नहीं कर सकते. सो टुडे वी मस्ट प्रोक्लेम, दैट मीन्स वी मस्ट डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली दैट वी मस्ट मेक आवर इंडिया अ डेवलप्ड नेशन. हम इसे डेवलप्ड नेशन बनाएंगे एंड वी विल अचीव दिस गोल इन few years only. So here this is actually a very good message given by Dr. APJ Abdul Kalam to all of us as an Indian, that we must stand up because we are having the potential, we are having the capabilities and qualities and so much talent, so that we can use all these talent, all these capabilities to make our nation a developed one. I hope so that this inspirational lesson is clear to you all. Just think about it, because you all children are actually the builders of future India. So you must try to make yourself a confidence one, try to recognize your capabilities and just do best in your future. All the best, all of you students. I hope so that this lesson is a very great inspiration to you all. Thank you.